Hi everyone, welcome to Rubix. And the topic for today's lecture is instantaneous velocity and speed. And this is of the chapter Motion in a Straight Line. And it is a chapter of class 11th NCERT physics book. So basically, in this topic, we are going to discuss two things: instantaneous velocity and speed. So you might be hearing this term instantaneous the very first time. So let me just Google this for you and show you that what instantaneous really means. So if you see here, I have written instantaneous meaning. So it shows that instantaneous, it happenings immediately or extremely quickly. So that means instantaneous means that at any particular instant of time. So what does that mean? That velocity at any particular instant of time, at only that instant. So basically, we must have studied that average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but it does not tell how fast it moves at different instants of time during that interval. So for this, we define the instantaneous velocity or simply velocity v at a particular instant t, and we define this velocity as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. So we write this as v is equal to limit delta t tending to 0 delta x by delta t, or we can also write this as dx over dt. So this is our expression for instantaneous velocity. Instantaneous velocity. So basically what does this equation mean? So इसका मतलब ये है limit delta t stands for 0 means that we are using an operation here कि जो delta time का interval है वो हम इतना छोटा करते जा रहे हैं, वो भी हमें particular instant पे value निकालनी है, and हम delta x by delta t मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि वेलोसिटी होता है, एंड डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मीन्स हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं. सो इसका मतलब दिस इज बेसिकली एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड इसको हम dx by dt लिखते हैं which is the differential coefficient of x with respect to t, and it is the rate of change of position with respect to time at that particular instant. ये dx by dt differential term होता है. You might be studying this in maths chapter. Differential calculus का ये part है. So this is differential. सो अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि मैं इसके थ्रू आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ. आई एम बेसिकली टेलिंग यू कि जैसे अगर मैं x वर्सेस t का एक ग्राफ बनाता हूँ, आई एम मेकिंग अ ग्राफ ऑफ x वर्सेस t मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. एंड मैंने एक इसका ग्राफ बनाया कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट लीनियर ऐसे कर्वली इंक्रीज हो रही है. So I'm writing marking this as 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and this is t in seconds, and now I'm here writing x of m, and ये बेसिकली मान लो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 हो गया, ये भी 4 हो गया. स्केल हम दोनों में सेम रख रहे हैं, 8 and basically 10.
सो अब जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो हम एवरेज स्पीड में क्या बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बोला जाए कि हमें अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हमें वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इसके लिए अगर हमें जैसे 3 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, सो बेसिकली आई एम जस्ट शोइंग यू द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द अबव इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के थ्रू ऐसे इंटरवल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 2 से इंटरवल बनाया एंड ये 4.5 तक गया, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस एज P1 एंड P2। नाउ अब ऊपर मैंने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। सो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब हम इस इंटरवल को और छोटा करते जाएंगे। अभी हमारा इंटरवल डेल्टा टी का ये है एंड मुझे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करना है, तो मैं और छोटी छोटी इस जो कर्व है इसको और छोटा छोटा करता जाऊंगा अंटिल आई रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो मैंने कहा कि मैं P1 P2 से मैंने डेल्टा टी को और छोटा करके मैं Q1 Q2 पे आ गया सपोज, एंड देन मैं और छोटा करके R1 R2 पे आ गया एंड सो ऑन। सो ये था 2 to 4.5 एंड मैं इससे और छोटा करके आ सकता हूँ 2.5 to 4। फिर मैं इससे और छोटा करके आ सकता हूँ 2.8 to 3.7 एंड ऐसे छोटे छोटे करके मैं बेसिकली आ जाऊंगा अपने जो डेल्टा टी हमारा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा एंड आई कैन राइट एट टी, ठीक है। सो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे मैं बेसिकली इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकता हूँ एंड वो होगी बेसिकली dx ओवर dt। dx ओवर dt बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है कि मतलब जो डिस्टेंस की वैल्यू dx का जो डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस है वो बहुत कम है एंड dt की वैल्यू भी और कम है। सो बेसिकली ये एक हमारा इसका ग्राफिकल मीनिंग है जो हमने बोला, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड नाउ सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट अगर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करें वेलोसिटी को निकालने से तो लिमिटिंग जो मेथड है वो बहुत क्लियर हो जाता है। सो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि लिमिट्स को छोटा करते जा रहे हैं। यू माइट बी स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इन योर 11th-12th एंड मैथ्स में आप पढ़ोगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। सो बेसिकली ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है एंड ऐसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं विच इज the limiting factor of distance over time and velocity is related to displacement and average speed आप सबको पता ही होता है। average speed तो normal उसका फॉर्मूला होता है and average speed is basically average velocity और speed। वो हम ऐसे निकालते हैं कि पूरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी हमें लेना है वो करते हैं एंड ओवर द होल इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेसिकली ये हो गया समेशन टी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज में हम पूरे इंटरवल का टाइम लेते हैं एंड इंस्टेंटेनियस में हम उस पर्टिकुलर इवेंट में लेते हैं जिस चीज में हमें उसकी जरूरत है। सो आई कैन राइट दिस एज, let me add a new page and ये देखो ये मैंने एक इमेज ऐड करी एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज बेसिकली ये मेरा हमारा डिस्टेंस टाइम कर्व था, ये हमारा डिस्टेंस टाइम कर्व था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व था एंड इसकी हमने स्लोप जो होती है बेसिकली, अब किसी की भी स्लोप आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इसमें स्लोप क्या होती है, स्लोप ये होती है एंड स्लोप इज डिफाइंड एज y by x, डिफरेंस इन y by x। सो बेसिकली
जो हमारी स्लोप, अगर मैं इसको डिफरेंशियल के टर्म्स में लिखूं तो वो होगी dx ओवर dt। एंड यही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, वो लिमिटिंग फैक्टर एज t टेंड्स टू 0। सो मैंने इस पर्टिकुलर tn पे इसकी स्लोप निकाली, and that is the particular instantaneous velocity at any instant tn। so basically ये हमारी instant velocity हो जाएगी इस slope के through। okay, I hope you get this point, and that's it from the topic, and there is no particular difficulty you should be facing in this topic, and अगर कोई issue आता है so we will discuss in the next video, and now I am going to show you a numerical based on it. Here is this numerical. I've taken it from the NCERT book. It says that the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square. X is equal to a plus bt square. और हमें a और b के वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। हमें a और b की वैल्यूज पता है। सो नाउ व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हमें हमारे से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। v इज इक्वल टू dx ओवर dt, राइट। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एंड वी विल बी गेटिंग 2bt। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं b की वैल्यूज में पुट करता हूं तो आई विल बी गेटिंग 5t मीटर पर सेकेंड। अब हमें t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू 0, एंड t इज इक्वल टू 2.5 पे निकालना है, 2.0 पे निकालना है, सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड बेसिकली एवरेज जो वेलोसिटी निकालनी है वो हमें t इज इक्वल टू 2 पे और 4 के बीच में निकालनी है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी का जो v एवरेज होती है, v एवरेज, ये हम बेसिकली नॉर्मली निकालेंगे x एट 4 माइनस x एट 2 ओवर 4 माइनस 2, बेसिकली टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। सो x एट 4 हमारा क्या हो जाएगा, x एट 4 अगर हम कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू 8.5 हो गई एंड b की वैल्यू 2.5 हो गई। सो वी विल बी राइटिंग 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, बेसिकली 4 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 8.5 and minus 4b, 4b would be 10, 4b would be 10। सो ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड ओवर 2। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेसिकली 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था which was given in your NCERT books, and it was really easy, and it really showed what is the concept of instantaneous velocity and how it is different from average speed and average velocity, right? So I hope you got this point, and it was a really easy topic. So we will be covering more such topics in our different lectures, so stay tuned on this channel and please do subscribe if you like the video, and I'll bring you more such content which would be helping you to achieve your desired marks and in your examinations also, like JEE and NEET. So thank you, tata, bye bye.